Today we are going to discuss control rectifier. In this chapter, this is chapter 10 of the fourth edition of Muhammad Rashid. We will discuss the types of control rectifier. Types means half wave, full wave, and then we will explain the operation, characteristics, and their performance parameters. Okay? There are some symbol explanation over here. इसमें जो chapter में आपके पास symbols use होंगी, like what is alpha? Alpha is the angle, delay angle, which is a characteristic for the control rectifier. Actually, what is the difference between this controlled and uncontrolled? ये बता सकता है कोई क्या difference है controlled और uncontrolled rectifier में? सर कंट्रोल्ड में फीडबैक प्रोवाइड की जाती है. Actually, in the case of uncontrolled, where we use diodes, diodes में क्या होता है? Usually we already know for the small signal, diode will be turned on at 0.7 volts. ठीक है, जब उसके क्रॉस 0.7 वोल्ट अपीयर होंगे तो वो ऑन हो जाएगा. ठीक है, उसमें हम उसके ऑन होने को कंट्रोल नहीं कर सकते. ठीक है, although it's a one direct unidirectional device, एक डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, लेकिन उस फ्लो को भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते. If there is a very small voltage appearing across it, it will be turned on. However, in this case, in the case of controlled rectified, diodes will be replaced with the thyristor. You already know that thyristor can be turned on by giving a gate signal. तो gate signal आपकी choice है. You can control the time, ठीक है, specific time when you want to give the gate signal. ठीक है, तो one by one इसको discuss करेंगे. Let's keep moving. इंट्रोडक्शन में यही चीज एक्सप्लेन की गई है. To obtain controlled output voltages, phase control thyristors are used instead of diodes. That's a very this is the summary. The output voltage of thyristor rectifier is controlled by controlling the delay and firing angle of the thyristor. आप आउटपुट वोल्टेज को भी कंट्रोल कर सकते हैं कि आपको कितनी वोल्टेज चाहिए. यू कैन, जितना आप उसको लेट फायर करेंगे आपकी एवरेज आउटपुट कम होगी. ठीक है, phase control thyristor is turned on by applying a short gate pulse and turned off by natural or line commutation. ठीक है, इसकी मैंने आपको असाइनमेंट भी दी थी. नेचुरल कम्यूटेशन इन द केस ऑफ AC. DC के केस में there are several combinations which you can use it to turn it off. These phase control rectifiers are simple and less expensive. Efficiency is generally above 95%. But these rectifiers convert AC to DC, and these control also AC to DC converter and used extensively in industrial application like variable speed drives. ठीक है, अब इसके different types हैं. सिंगल फेज, थ्री फेज, तो उसमें सेमी कन्वर्टर, फुल कन्वर्टर, डुअल कन्वर्टर. ठीक है, ये सेमी कन्वर्टर is a one quadrant converter and has one polarity of output voltage and current. ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये जो सेमी कन्वर्टर है ये वन क्वाड्रेंट ऑपरेशन है इसका. ये अगर आपका वोल्टेज पॉजिटिव है तो करंट भी पॉजिटिव. दैट इज ओनली वन कन्वर्टर ऑपरेशन. The full converter is two quadrant converter. The polarity of its output can be either positive or negative. We will see in a couple of minutes. However, the output current of full converter has one polarity. और dual converter जो है इसके फोर क्वाड्रेंट ऑपरेशन है. आउटपुट करंट और वोल्टेज दोनों नेगेटिव पॉजिटिव हो सकते हैं. ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही होगी आपको. जब करंट और वोल्टेज दोनों पॉजिटिव होते हैं तो ये क्या होता है कि पावर इज डिलीवर्ड फ्रॉम द सोर्स टू द लोड. ठीक है, if voltage is negative, current is positive, then of course there is something else. Then the current will be or power will be supplied to the from the load to the source. ये थोड़ा सा चीजें हैं, we will discuss in a couple of minutes. Yes, there is something similar to the diode rectifiers. Input supply voltage is sine wave could either 120 or 240 volts with the different frequency.
like one for 120 it's 60 hertz and 240 it's 50 hertz. The DC output voltage contains ripple at different harmonic frequencies. तो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि डीसी वोल्टेज में आपके पास रिपल्स होते हैं, इसीलिए हम रिपल फैक्टर कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, ये जो आपके पास लेटेस्ट एडिशन है, इसमें इशू ये है कि उसने स्टार्ट एक सिंगल फेज फुल कन्वर्टर से किया है। लेट्स स्टार्ट विद द हाफ वेव। ठीक है, हम हाफ वेव से स्टार्ट करते हैं। लेट मी शेयर यू जो थर्ड एडिशन है उसमें ये अवेलेबल है, ये वाला टॉपिक, हाफ वेव कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। ठीक है, look at the circuit diagram. You already know the other basics. The diode is replaced by the thyristor. Here is the AC supply. Look at the, अगर किसी को समझ नहीं आ रही ठीक है ना आस्क। रऊफ समझ आ रही है अभी आपको? उसामा, खुरम जी साहब सर। जी सर, आ रही है। आ रही है समझ। अली रजा? यस सर, आ रही है। आ रही है समझ। फरहान? फरहान साहब? जी सर, आ रही है समझ। आ रही है। जस्ट वी आर रिप्लेसिंग द डायोड विद द थायरिस्टर। ठीक है, शुएब मुनीर साहब? जी सर, समझ आ रही है। उसामा? जी सर, आ रही है। चलो, वेरी गुड। ओके, लेट्स सी, दिस इज द इनपुट, दिस इज द सोर्स वोल्टेज Vs। ठीक है, साइनोसाइडल है। नाउ इफ इट इज अ डायोड इट विल बी टर्न ऑन लाइक somewhere around here, but in the case of thyristor it is up to the gate pulse। ठीक है, ये क्या किया आपने, when you apply a gate pulse at a certain angle like alpha, that is a delay angle, then your output will appear because this thyristor starts conducting and you have output। तो इसी तरह ये नेगेटिव साइकिल है, ये ब्लॉक कर देगा because thyristor is unidirectional device। Similarly that alpha is also present in the next half cycle। So this is the waveform of the current। Actually this is in the case of resistive load। resistive load में क्या होता है, जो वोल्टेज है वो करंट वोल्टेज को फॉलो कर रहा होता है। ठीक है, जैसी वोल्टेज की वेवफॉर्म वैसी करंट की वेवफॉर्म। दिस इज द वोल्टेज अक्रॉस द थायरिस्टर। ठीक है, व्हेन थायरिस्टर इज ऑफ देन देयर इज अ वोल्टेज अक्रॉस इट। ये देखिए, जब थायरिस्टर ऑफ है तो आपको उसके क्रॉस वोल्टेज नजर आएगी। ये देखिए, when it is on then it is conducting, there is no drop, ideally there is no drop across। ठीक है, तो आप ये चीजें मेजर कर सकते हैं इससे। हाउ यू कैन गेट द एवरेज, इसके मैं आपके साथ नोट शेयर कर लूंगा, दूसरी बुक से PDF आपके साथ शेयर कर लेंगे। तो दिस इज आल्सो वेरी सिंपल। यहाँ से जब आप इसकी एवरेज वैल्यू निकालेंगे, द डिफरेंस इज ओनली दैट यू विल, इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, द एवरेज वैल्यू का जो आपके पास इक्वेशन होती है ना, V मैक्सिमम साइन थीटा 1/2 पाई, याद है भाई कि नहीं याद? हाफ वेव रेक्टिफायर का केस। हाँ जी, रऊफ याद है कैसे निकाली थी? शुएब? जी सर, याद है। याद है ना, 1/2 पाई इंटीग्रल 0 to पाई V मैक्सिमम, उसमें जीरो से था, इसमें एंगल से होगा। यहाँ पे एंगल की जीरो की जगह वी विल पुट अल्फा। तो वो जब उसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो अल्टीमेट ये इक्वेशन 1 है आपके पास लिखी हुई, ये देखिए स्क्रीन पे जहाँ पे मेरा कर्सर है, तो ये आपको आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से ये आपके एवरेज, दिस इज फॉर द रेजिस्टिव लोड। Similarly the average output current and RMS voltage and RMS current can be found like similar। There is a very factor in this control rectifier, there is some normalized average voltage। ठीक है, ये एक अहम फैक्टर है, ये इन्होंने इस केस में कैलकुलेट किया हुआ है। मैं करते क्या है इसमें कि जो आपके पास मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज है, जो
एवरेज वोल्टेज डिवाइडेड बाय मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज। मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज कब होगी? व्हेन यू आर फायरिंग द एंगल इन द स्टार्ट ऑफ दिस वेवफॉर्म। ठीक है, जब स्टार्ट में फायर करेंगे तो ये आपके पास हाफ वेव का केस है, तो वो कैसे निकालेंगे आप? ये देखें, वी एवरेज, ये तो आपने अभी कैलकुलेट किया बाय द फार्मूला, और ये आप हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में यही होती है ना आपके पास, वी मैक्सिमम और पाई। ठीक है, तो ये आपके पास नॉर्मलाइज फैक्टर आ जाएगा वोल्टेज का, वी एवरेज डिवाइडेड बाय द मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, किसी को मसला है भी यहां तक? एनीवन? खवातीन डिपार्टमेंट से अब्दुल बासित जी। ये फॉफकॉम टेक्नोलॉजी वाला कौन है भाई? ये फॉफकॉम कौन है भाई? सबको समझ आ रही है भाई यहां तक? चलें आगे। जी सर। जी सर। हाँ जी, आपका 26 को एग्जाम भी है, ये भी सोचना है। ठीक है सर, कैसे एग्जाम कैसे देंगे? वो ले लेंगे, आप फिक्र नहीं करें, आप तालीम पे तवज्जो दें अपनी, वो हमारा काम है। But maybe in the next week there is some exam policy, तो वो आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। ठीक है, अभी फाइनलाइज नहीं हुई। सर ये मिड फाइनल तो इकट्ठे हो गए हैं सर, ये तो काफी ज्यादा सिलेबस हो गया हमारा। नहीं, वो आप परेशान ना हो, वो हमारा काम है, आपका काम है पढ़ना, वो हम उसको सॉर्ट सर आउट वो कर पढ़ने के लिए कह रहे हैं कि सर काफी सिलेबस तो हमारा काफी हो गया। लेंगे। कोई बात नहीं, अभी तो अंडरग्रेड का सिलेबस भी खत्म नहीं हुआ। Anyway, let's discuss this in the later time of the class. Now with the inductive load, what will happen when we have an inductive load? You already know that inductor is storing the energy. Okay, when it is forward biased, consider after the firing angle until this point. अब आपको गौर करने की जरूरत है, जिसको पहले भी समझ नहीं आई वो अभी भी यानी इस मामले पे तवज्जो दे सकता है। If we fire thyristor at this alpha, surely the voltage will follow this waveform. तो ये waveform follow करेगी, but at the zero crossing, what will happen? This is off, but your inductor is energized. तो होगा क्या कि इंडक्टर की जो पोलैरिटी है जिसमें ये चार्ज होगा, it will reverse its polarity. तो ये अपनी पोलैरिटी को रिवर्स करेगा, then the output will be, ये स्पाइक है ना, ये नीचे वाला, that will be the result that will come from this the stored charge in the inductor. ठीक है, similarly the current will follow the voltage waveform. देखिए करंट जी यहाँ से इंक्रीज कर रहा है, of course current is a delayed version of this sinusoid. ठीक है, करंट इंक्रीज कर रहा है, लेकिन इस खास पॉइंट के बाद 0 के बाद ये डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो this is the voltage across the thyristor. ठीक है, बात समझ आ गई है नहीं? Anyone? Someone is cooking something, huh? Maybe खुरम? जी सर। खुरम नाश्ता बना रहे हो? सर नहीं सर, मैं लेक्चर ले रहा हूँ। अच्छा, तो मैं शायद आज ड्यूटी रिप्लेस हो गई है। नहीं। अच्छा, वो बर्तनों की आवाजें आ रही है ना दरमियान में। सर मेरे नहीं है, किसी और की होगी। अच्छा, मैं शायद एक्शन साहब की ड्यूटी आज रिप्लेस हो गई है, क्योंकि गवर्नमेंट का तख्ता उल्टा जा सकता है किसी वक्त, ऐसे ही है ना जी। क्यों जी? कौन है और नाश्ता बनाने वाला भी? अरे मेरा ख्याल, चलें जी, लेट्स गो। ठीक है जी, ये इंडक्टर के केस में आपको समझ आ गई बात?
we can avoid this situation. अब ये है कि if we connect a freewheeling diode, we already discussed this freewheeling diode. तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इस फ्रीव्हीलिंग डायोड को. व्हाट विल हैपन, जब ये फ्रीव्हीलिंग डायोड आप कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा, व्हेन ये देखिए आपके पास ये सोर्स वेवफॉर्म है, यू फायर एंगल, यू हैव आउटपुट, ठीक है. बट व्हेन दिस थायरिस्टर इज ऑफ, आपने क्या किया, जब ये जीरो क्रॉसिंग से इधर जाएगा तो ये थायरिस्टर ऑफ हो जाएगा. थायरिस्टर ऑफ होगा, व्हाट विल हैपन, इनिशियली पहले तो इसके पास पाथ ही नहीं था डिसिपेट होने के लिए, ठीक है. नाउ दिस एनर्जाइज्ड पार्ट हैज अ पाथ टू डिसिपेट. तो इसके पास क्या होगा, आपके एनर्जी डिसिपेट के लिए रास्ता मिल गया. तो ये क्या होगा, आपके पास करंट पहले पीक पे जाएगा, देन इट विल बी डिसिपेटेड थ्रू दिस पाथ. ये बात समझ आई है नहीं आपको? ये सर आगे समझ. फ्रीव्हीलिंग डायोड का काम क्या है कि ये जो वहां पे हमने देखा था, जब हमने डिस्कस किया था, अगर यहाँ पे स्विच हो तो इट विल, इफ देयर इज नो डायोड ओवर हियर, इट विल प्रोड्यूस अ स्पार्किंग अक्रॉस द स्विच. ऐसी है ना, बिकॉज इंडक्टर हैज एनर्जी. तो ये क्या करेगा, उसी वक्त अपनी पोलैरिटी रिवर्स करके अपने चार्ज को रिटेन करने की कोशिश करेगा, ठीक है. बट इफ वी हैव अ फ्रीव्हीलिंग डायोड, देन तो ये सर्किट के पास अपनी एनर्जी डिसिपेट करने का रास्ता है, देन इट विल बी डिसिपेटेड लाइक दिस, ठीक है. वोल्टेज, इट विल फॉलो द करंट वेवफॉर्म, voltage will follow the current waveform, but after this point the charge inductor will be dissipated, ठीक है जी. जी अस्सलाम वालेकुम सर, आ गए आप? ये हमारे सर मैं तो काफी देर से आ गया. अच्छा अच्छा, मैंने पूछा था कि फॉफकॉम टेक्नोलॉजी कौन है, तो वो आपका था. अच्छा, आपका नाम नहीं आ रहा, तो ये मैं इसलिए पूछा था. तो दिस इज ऑल अबाउट दिस सिंगल फेज हाफ वेव कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, ठीक है. इसमें हमने दो चीजें डिस्कस की हैं, एक विद रेजिस्टिव लोड, उसमें कोई इशू नहीं हमारे पास, एंड वी हैव कैलकुलेटेड द एवरेज वोल्टेज, एवरेज करंट, और इसका जो नॉर्मलाइज्ड वोल्टेज है, नॉर्मलाइज्ड एवरेज वोल्टेज, दैट इज द एवरेज वोल्टेज डिवाइडेड बाय द मैक्सिमम वोल्टेज, ठीक है. ये दूसरा फैक्टर है. तीसरा फैक्टर हमने जो डिस्कस किया, दैट इज विद द इंडक्टिव लोड. इंडक्टिव लोड के साथ, that is this spike is important, you should have the understanding why this spike is coming, ठीक है, after the zero crossing. The reason is that this charge energized inductor, and surely this waveform current will follow this waveform, ठीक है. लेकिन ये जो करंट है ये इसके बाद डिक्रीज करना शुरू करेगा, and then we see the role of the freewheeling diode, ठीक है जी. बात समझ आ गई सबको? yes. Anyone else question? Any question? मैं पूछ लूं क्वेश्चन? क्यों भाई रऊफ, तो क्या रोल है यार ये फ्रीव्हीलिंग डायोड का, व्हाई वी आर यूजिंग दैट? मुसर्रत, मुआज साहब भी तशरीफ ले आए हैं हमारे पास, हमारे मोअज़्ज़ज़ गेस्ट हैं. जी सर. काफी लेट आए हैं आप क्लास में? नहीं सर, मैं आगे से ज्वाइन कर ली थी मैंने. अच्छा अच्छा, नजर अब आए जी. अब्दुल बासित, Abdul Basit is, I think, he's busy in cooking the breakfast. उसामा जी सर. ये बताएंगे ये फ्रीव्हीलिंग डायोड का क्या रोल है भाई?
सर जब ये थायरेस्टर ऑफ हो जाता है तो ये एक पाथ प्रोवाइड कर देता है। path provide कर देता है. And if we go back, why we have a spike in the output voltage on the negative side? कौन से वाली सर? ये पाई के बाद जो स्पाइक आ रही है, जी सर। सर ये जो आपकी इंडक्टर चार्ज हो जाती है, ये थायरेस्टर ऑफ होने के बाद ये डिस्चार्ज होती है पोलैरिटी चेंज करके। अच्छा थायरिस्टर ऑफ हो गया तो क्या हुआ? सर उसके बाद ये इंडक्टर जो था वो डिस्चार्ज हो रहा है। अच्छा सही से. ओके चलिए लेट्स कीप ऑन मूविंग. दिस इज ऑल अबाउट द Harvey case. Okay, let's go back to the our book. ठीक है जी. Okay. Now we will discuss the single phase full wave converter. आपने देखा कि इस केस में आपका जो प्रीवियस हमने डिस्कस किया उसमें क्या था आपके पास कि जो आपका जो करंट है, वोल्टेज इज पॉजिटिव, करंट इज पॉजिटिव, आउटपुट वोल्टेज इज पॉजिटिव, करंट इज पॉजिटिव. अगर हम इसको ड्रा करें एक्स वाई एक्सिस में तो ये वाला एक क्वाड्रेंट बनता है. समझ आ रही है बात या नहीं? सर दूसरा कोऑर्डिनेट अगर हम ड्रा करें, मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आपको? जी देखिए अगर आप सिंपली ड्रा करें, दिस इज ओवर एक्स वाई, दिस इज योर करंट, दिस इज योर वोल्टेज, ऐसे ही है जी. यहाँ पे ये वाला क्वाड्रेंट है आपके पास. In the case of single phase half wave rectifier, we are moving only in this quadrant. तो ये क्या हो गया आपका सिंगल क्वाड्रेंट ऑपरेशन हो गया. बात समझ आई है नहीं? जी. हमने यही बात पढ़ी है ना यहाँ पे. ये देखें, a semi converter is one quadrant converter, has one polarity of output voltage and current. तो करंट की पोलैरिटी भी पॉजिटिव है एंड वोल्टेज की पोलैरिटी भी पॉजिटिव है. लेट्स कीप मूविंग. ओके दिस इज नाउ वी विल डिस्कस सिंगल फेज फुल कन्वर्टर. ठीक है, इट इज आल्सो लाइक अ फुल वेव रेक्टिफायर. The difference is only you will see over here. We will discuss this with the highly inductive load so that the load current is continuous and ripple free. ये देखिए, like ये कौन सा सर्किट है? ब्रिज है या दिस इज अ ब्रिज सर्किट? सर ब्रिज सर्किट है ना आपके पास. Diodes are replaced with the thyristor and it's a highly inductive load. ये कोई बैटरी है, शो किया हुआ है कि चार्जिंग के लिए यूज हो रही है. This circuit is used for the charging purpose. So look at the input waveform, that is source voltage sinusoidal and two thyristor like T3 and T4, they are simultaneously fired. ठीक है, and T1 and T2 they are also simultaneously fired. ये देखिए, इस ड्यूरेशन के दौरान T1 and T2 will be fired. The direction of the current will be going from here to the load and back into the source. ठीक है, बात समझ आ गई है? And it is fired at a certain angle. फर्स्ट ईयर की है सिर्फ? जी जी. हाँ जी ठीक है. 17 अब भाई बात समझ आ रही है? क्या क्या बात की है? 10 तरीका से. Okay. I think someone is speaking on the phone and it is disrupting over. Okay.
Similarly, when T3 and T4 is fired, the path will be from here and back to here. ठीक है? But you can see the direction of the current through the load will be same. इसमें से डायरेक्शन ही चेंज हो रही, इसमें से करंट है वो ऐसे ही फ्लो कर रहा है. however the voltage will be reversed across this secondary. ठीक है, पॉजिटिव है तो ये T1 and T2 is operating, this down terminal is positive, then T3 and T4 are, तो हमारे पास क्या है, वोल्टेज आगे पीछे हो रही. Similarly, it's a highly inductive load, so we already see that if we use the firing angle alpha, तो यहाँ पे आपका थायरिस्टर फायर होगा. You have output, ये आउटपुट वोल्टेज आपके पास. However, after the zero crossing, these thyristor will be off, but this inductor is energized. तो ये spike उस inductor की वजह से. Similarly, at this pi plus alpha, the other two thyristors are fired. तो वहां से ये आपकी आउटपुट जो है वो आ जाएगी. ठीक है? Again, it will go into the negative direction. Similarly, the current, this is the load current. ये देखें आपका चूंकि इंडक्टर है, हाईली इंडक्टिव लोड है, तो it can store the energy and maintain the current. ये आप constant current maintain रख सकता है. Even if there is no supply, then it will start discharging. तो ये discharge होना शुरू हो जाएगा. तो then the load current will be constant. ठीक है, ये particular condition है. If you have very highly inductive load, तो उसमें कैपेबिलिटी है वो आपके आउटपुट करंट को कांस्टेंट रखे. हाउ अबाउट द सोर्स करंट? सोर्स करंट आपका क्या होगा? दिस इज IS, दिस वन. ऑफ कोर्स व्हेन इट इज कंडक्टिंग इन द T1 T2, व्हेन इट इज फायर्ड, देन यू हैव अ सोर्स करंट. करंट की डायरेक्शन क्या होगी? ओके, लेट्स, यहां तक आप देखें वोल्टेज तक. वी विल कम बैक आफ्टर द ब्रेक. ठीक है, then we will start.